journey of learning, collaboration, and innovation that will shape the future of dentistry. During these 3 days, we have an amazing lineup of esteemed dentists who have incredible reputes and rich experience in their respective fields, from academic degrees to clinical specialization, from training and working in the Far East till the West, and in Pakistan. Our speakers aim to cover every aspect. So without a further ado, I would like to invite first Dr. Zahida Warsi, President APDSA Pakistan, to welcome you all to APDSA. Dr. Zahida, the floor is yours. Assalamu alaikum, everyone. So this is Dr. Zahida Warsi here, President and Country Representative of APDSA Pakistan Division. It's my great pleasure to welcome all of you, first of all. So let me give you a brief overview of what is APDSA. Asia Pacific Dental Student Association started in 1968 in Japan, and Pakistan became a member in 2020 under Dr. Arsan Subha Sadiq. Since then, we have progressed by leaps and bounds. Today, more than half of all dental colleges in Pakistan are members of APDSA. To organizing dental camps, workshops, webinars, and dental conferences has assured our success. And continuing this trend, we present you with DENTCON'24. I hope this will become an insightful learning experience for all of you. Thank you, everyone. Over to you, Marij. Thank you, Dr. Zaida. As first speaker of tonight and kick off our webinar, I'd like to invite Assistant Professor Dr. Danial Qasim Butt. A little brief overview of Dr. Danial Qasim. He has a rich experience of over 14 years as a clinician and as an academic. He graduated from Islamic International Dental College, Islamabad, and then went on to MPhil degree in pathology. He has served as head of department oral pathology at High-Tech IMS Dental College, Taxila, for the past 3 years, before going to Malaysia in the year 2022 for pursuing a PhD degree in oral pathology from University Sains Malaysia, Malaysia. I present to you Dr. Danial Qasim Butt. Sir, the floor is yours. Sir, kindly unmute the mic. Is it fine now? Yes, it's perfect. Okay. Assalamu alaikum and hello everyone and welcome you all on this platform. And it will be a great experience for you all because when we were doing, when we were graduating and once we were done with our graduation, we didn't have this kind of platform. So we were surrounded by so many people who kind of, I would say, biased in a way that they always wanted someone to be, going directly into the, clinic, not looking into any other stuff. So, right now, my experience over here in Malaysia is so far 2 years now, and I'm in my final year of my PhD. And I have noticed so many things that we, as a Pakistani students, are lacking, both in academics and as well as professionally. So, but then again, since I got the opportunity of going out and learning, so will you, inshallah, someday. So this presentation is all about that, to look into different things and so that you could have options ahead of you so that you can choose from. So we should not keep you on wait. Let's start the presentation and let me share my screen. I have made this because this is very necessary. I've made this presentation on Canva. Most of you would not know about Canva. So Canva is basically I came to know about it when I came over here. So students over here, they do present basically on this software that is called as Canva. It is better than PowerPoint.
and easier. So you get the templates. So I'm just telling you just so that you would know, because these things are also important. So anyways, uh, topic is PhD versus FCPS. So that is the path you guys will going to choose eventually. Uh, I have little reservations about FCPS only, because topic is kind of, there's a vast distinction between the two. So I will try to unravel few things about the two options, and then I will leave it to you to decide. So let's begin. So when choosing a career as a young graduate, so you will come to know that many people would be doing clinic. Somebody will come up even in the hospital and would be asking you, why not you give a FCPS exam? So nobody is going to talk. I don't know what is the idea now about different paths in the career, but when I was when I was a graduate, so people used to talk about FCPS only. So in this presentation, I'm going to compare few things. And first of all, we'll start with Doctor of Philosophy, that is PhD. So what does it do to you as a student, as a professional health worker? Uh, so it grows your intellect. It helps you research through many things which you are interested in, and it helps you grow. With that, it has the international collaboration. So you can collaborate with so many other people around the world. So then there's a personal fulfillment, and that is that you would feel like you have achieved something, you are making something in your PhD research. You are getting you are introducing a novel idea to the world. So that is personal fulfillment. Then when you are doing a research-based work, there is always a problem. On that problem, you usually try to find out ways to solve it, find out ways to rectify them. And then again, once you are done with your PhD, then there is always potential of high earnings. So for me, as a dentist myself, I am more interested in getting the success in a form of fame, that I have created something, and uh it should be popular, it should be renowned, rather than I am busy in making money. So with this uh with this idea, I would be focusing more on the research part. So that's why I was in this field, or in this academic field, that is PhD, in the first place, because I wanted to create something rather than doing something on patient and earning money from like this. So FCPS is fellowship of College of Physicians and Surgeons, as we all know, and that is the degree only limited to Pakistan, not around the world. So it's not a global degree. So it's just a local based degree. So I'm sorry if it can, hurt few sentiments as well. But yes, FCPS is not recognized, at least in Malaysia over here, because I asked people around over here. So, but what does it do? FCPS is basically a clinical based degree, and it actually improves your clinical skills. If there will be advancement in your clinical skills,
there is a professional commitment to it. You should be, by attaining this degree, you are like professionally committed to treat a patient, to manage the patient. And there are clinical positions that you would be doing, or rotating around. Like, for example, if you're doing a clinical residency in periodontology. So it's not that you are only limited to periodontology. You would be moving around to different departments and treating the patients that are associated with your with your field. Then with this, naturally, you're going to treat the patient, and the patient will you will gain trust of your patient. The patient will come up to you, will tell you so many other things, and can become, a lifetime patient for you. It happened with me because I've been part of I'm running my own clinic in Islamabad from the past 14 years. And Sir, I sorry to disturb you. We are getting a lot of messages. ये हमारी local community का है, तो if you could mix a bit of Urdu as well. I know आप बहुत international हो गए हैं, but हमारे students को अच्छा समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा mix of Urdu भी कर दें, वो चलो, ज़्यादा आसान होगा। ये तो और अच्छी बात हो गई। इंग्लिश मैंने बोल बोल कहा के इधर इंग्लिश बोल बोल के थक गया हूँ मैं वैसे। चलो, अच्छा हुआ। चलो, दैट्स गुड। दैट्स व्हाई आई आस्क यू के ज्यादा कम्युनिटी किस चीज़ की है, पाकिस्तानी है कि कौन है? तो मोस्टली पाकिस्तानी आपने मुझे बताया था, तो दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग इन इंग्लिश। तो खैर, बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था क्लिनिक, सो आई स्टार्टेड इन 2010। आई ओपन माई क्लिनिक इन 2010 इन इस्लामाबाद, और उस वक्त मैं ग्रेजुएट हूँ 2008 का। तो बिल्कुल फ्रेश था। और मैंने इसलिए क्लिनिक स्टार्ट किया था बिकॉज आई वॉज अमंग दोज पीपल जिसको बताया गया कि भाई FCPS कर लो अगर तुमने सरवाइव करना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सीनियर्स कहते थे तो हम कहते थे ठीक है, सही कह रहे होंगे। देन आई गेव एक्चुअली 3 attempts ऑफ FCPS, और मुझे स्कोर अभी तक याद है, 72 फर्स्ट अटेम्प्ट, 74 सेकेंड अटेम्प्ट, 76 थर्ड अटेम्प्ट। और मुझे शौक था ऑर्थो में करने का। दैट वाज माय, जब मैं फाइनल ईयर में था तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि कुछ करना है, मैंने ऑर्थो में करना है। उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है, क्योंकि मैंने जब ऑर्थो स्टार्ट की थी, जब मुझे ऑर्थो का शौक इसलिए भी था क्योंकि व्हेन आई वाज 13-14 years old, तो मुझे ब्रेसेस लगे हुए थे। तो वहां से मैं इंस्पायर हुआ था एक ऑर्थोडोंटिस्ट से। तभी मैं BDS किया, और तभी मैं ऑर्थोडोंटिस्ट बनना चाहता था। लेकिन जब मैंने ये अटेम्प्ट्स दी FCPS की, तो ईच अटेम्प्ट जो थी मेरी, दैट वाज शॉर्ट ऑफ 1%। हर कोई मुझे ये कहता था 1% से रह गए हो, 1% से रह गए हो। देन आई गेव अ पॉज टू FCPS, और फिर मैंने इस तरह क्लिनिक अपना बनाया। तो जब मैं क्लिनिक कर रहा था, क्योंकि मुझे था शौक कि मैं कुछ करूं, तो ड्यूरिंग द टाइम मैंने अपना शौक पेशेंट ट्रीटमेंट का पूरा कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि 2 सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट थे, एक ऑर्थो और दूसरा ओरल पैथोलॉजी। तो मैंने सोचा चलो, लेट्स गो एंड सी द वर्ल्ड ऑफ ओरल पैथोलॉजी। तो हम पाकिस्तान में एमफिल हो रहा था, FIP से आई डिड माई एमफिल इन 2016। और जब एमफिल हो रहा था ओरल पैथोलॉजी में, तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। और मीन टाइम मैं साथ साथ क्लिनिक भी कर रहा था, क्योंकि मेरा वो ओपन हुआ था। तो मैं एकेडेमिक्स भी कर रहा था, उसमें रिसर्च बेस्ड डिग्री भी कर रहा था, और शाम को मैं क्लिनिक भी कर रहा था। तो शाम से मुझे पैसे तो मिल रहे थे, आई वॉज अर्निंग, मुझे पेशेंट ट्रस्ट भी मिल रहा था। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेंटिस्ट्री मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि जो चीज़ जिस चीज़ से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिलिंग कर रहा हूँ, और फिलिंग जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है जिससे मैं कर रहा हूँ, वो किसी ना किसी ने टेस्टिंग तो ज़रूर की होगी ना। हम तो मार्केट से पकड़ लेते हैं, वेंडर आता है हमें दे जाता है मटेरियल, लेकिन उसको बनाया किसने? किसी ने बनाया होगा, किसी ने टेस्टिंग की होगी, और फिर आगे उसने डेंटिस्ट को दिया होगा ना, ताकि वो आगे से परफॉर्म करे, ट्रीटमेंट करे। तो वो जो चीज़ थी वो मुझे हमेशा, मैं सोचता था कि
वो बंदा होना चाहिए जो कि इम्प्रूव कर सके फ्रॉम एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो बेसिकली एक ग्राउंड लेवल है जहाँ पे आप रिसर्च करते हैं, जो मटेरियल आप बनाते हैं आप किसी क्लिनिशियन को आप देते हैं ताकि वो टेस्ट कर सके, पेशेंट के ऊपर यूज कर सके और फिर उसका आउटकम बताए, और फिर जो है पेशेंट, ओवरऑल पेशेंट को एक बेनिफिट मिलता है। तो खैर ये दो एक मेजर डिफरेंसेस हैं। तो दूसरा ये कि अब लेट्स सपोज के सॉरी, अच्छा, अब जब आप एफसीपीएस जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं, तो अब मैं ज़रा उसको लिमिटेड करता हूँ कि हम पीएचडी में किस तरह एंटर हों। तो पीएचडी में सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास पोटेंशियल सुपरवाइजर्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मलेशिया में आया तो मैंने मुख्तलिफ सुपरवाइजर्स देखे मेरी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, और मैं इनको ईमेल करता था। सो उनको मैंने ईमेल की कि मेरा इंटरेस्ट है, आई वांट टू परस्यू माय पीएचडी इन एक्स वाई जेड टॉपिक, सो आई वुड लाइक टू डू इन योर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। इस तरह करके आप एक फॉर्मेट बनाते हैं और आप मेल करते हैं। फिर उसके बाद उनका जवाब आता है, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने आपका कोई एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इन रिसर्च, जो कि आपने एमफिल किया होता है, आपके क्या स्कोर थे जो कि आप बता रहे होते हो, और वंस एक सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं तो फिर एक गो हेड मिलता है सुपरवाइजर की तरफ से, ओके आई एम टेकिंग यू इन। और आई एम, कभी कभार ऐसे होता है कि सुपरवाइजर के पास अपना ही एक प्रोजेक्ट होता है, तो वो बता देता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो आई नीड समवन। तो उसके लिए वो इंटरव्यू एक रखता है जिसमें वो डिटेलिंग पूछता है कि कितना नॉलेज है, क्या ये काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन दे चूज यू, और आपकी सिलेक्शन होती है। तो मेरे वाले केस में मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरे वाले केस में ऐसा हुआ था कि आई डिडंट, मेरे पास, मेरे सुपरवाइजर के पास प्रपोजल नहीं था मौजूद। तो लेकिन आई गॉट सिलेक्टेड। जब मैं इधर आया तो मुझे खुद प्रपोजल बनाना पड़ा। ठीक है, और फिर मीटिंग रखी गई जिसमें मैंने अपना डिफेंड किया, और फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने की इन पीएचडी, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सली यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अप इज एफसीपीएस। जो एफसीपीएस का एक बहुत सिंपल तरीक़ेकार है, यू हैव टू क्लियर एग्जाम्स। तो पहला होता है पार्ट 1। ठीक है, जिसमें आपके बेसिक साइंस का नॉलेज होता है, और वो आपने देना, मतलब उसको आपने जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो कोर्स वर्क होता है, बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी से ही रिलेटेड एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्जाम होता है। ठीक है, और जब वंस आप जब पास कर जाते हैं एफसीपीएस पार्ट 1, फिर उसके बाद आप अपनी इंटरेस्ट देखते हैं कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, पेरियो में है, ऑर्थोडोंटिक्स में है, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में है, प्रोस्टोडोंटिक्स में है। तो मुख्तलिफ जो डेंटल फील्ड्स हैं क्लिनिकल, उनके ऊपर आपकी जो भी आपकी इंटरेस्ट होता है, तो उस पर आपका एक इंटरव्यू रखा जाता है। एंड व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू, तो उसके ऊपर जो भी, उस हिसाब से जो भी आपकी सिलेक्शन होती है, तो आपको उस डिपार्टमेंट में रख लिया जाता है। तो 2 इयर्स का उसके बाद टाइम फ्रेम होता है, जिसमें वंस यू आर इन द वंस यू पास थ्रू और सिलेक्शन आपकी हो जाती है, तो फिर आफ्टर 2 इयर्स ऑफ रेजिडेंसी, फिर आपका IMM एग्ज़ाम होता है, जिसमें जिसमें आप बेसिकली आपका जितना भी आपने आधे 2 इयर्स में, टोटल 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, तो आधे साल में, 2 साल में आपने जो भी काम किया होता है, जो भी क्लिनिकल वर्क किया होता है, जितनी भी क्लिनिकल स्किल्स डेवलप की होती हैं, तो उसका एक कह लो आपके एक मॉड्यूल एग्जाम होता है आफ्टर 2 इयर्स। और फिर मज़ीद आफ्टर 2 इयर्स अगर आप एडअप कर लें, तो फिर फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होता है, तो वंस यू गॉट थ्रू, तो फिर एक आपको एक FCPS की वो डिग्री मिल जाती है। तो बहरहाल दिस इज द होल फ्लो
जिसमें आपने पीएचडी में या एफसीपीएस में आपने चलना होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द कोर्स खैर जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी में होते हैं, तो पीएचडी में जैसा मैंने आपको बताया प्रपोजल डिफेंस और एथिकल बोर्ड बैठता है, लिटरेचर नॉलेज होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर मीटिंग्स होती हैं विद द सुपरवाइजर्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर पीएचडी रेजिडेंसी। और फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें आपने इन दी एंड थीसिस वगैरह लिखना होता है। तो ये सारा कुछ जो पूरा टेन्योर होता है यूजुअली जो है 3 to 5 years का होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उसको कंप्लीट करते हैं बिटवीन 3 to 5 years। तो और यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया जो है वो भी 3 to 5 years का टाइम फ्रेम देती है टू कंप्लीट योर पीएचडी। एंड दिस इज और ज़रूरी नहीं है कि 3 to 5 years में ही हो, आप 2 साल में भी कर सकते हैं इफ़ यू आर दैट मच, मतलब आप अगर आप आइंस्टाइन हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो है कि कोई मसले वाली बात ही नहीं, लिखना और ये सारा कुछ और सब कुछ इजीली हो जाएगा, तो यस दे आर एग्जांपल्स जिसमें लोगों ने 2.5 years में भी पीएचडी कंप्लीट की। सो बट मेरे ऑलरेडी 2.5 2 years तो मेरे खैर हो गए हैं, आई मीन माई फाइनल ईयर, तो मैं उन रेयर केसेस में नहीं हूँ फिलहाल। तो बहरहाल बाकी जो एफसीपीएस साइड है, एफसीपीएस में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपकी जो, क्योंकि जो डेंटिस्ट्री इटसेल्फ है इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड, ठीक है, इट्स नॉट थ्योरेटिकल फील्ड। तो प्रैक्टिकल फील्ड है मींस यू आर अ सर्जन, ठीक है। तो जब आप सर्जन होते हैं तो डेफिनेटली आपकी क्लिनिकल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। आपको पेशेंट के साथ डीलिंग, पेशेंट को किस तरह आपने सेटिस्फाई करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इट्स नॉट रॉकेट साइंस, विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद कंटिन्यूस वर्क एट द क्लिनिकल लेवल आप ये अटेन कर ही लेते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको सुनने में, चूंकि अभी आप जब एंटर नहीं हुए होते प्रोफेशनल फील्ड में, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ना ऐसे लग रही होती हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगी, किस तरह कर लिया लोगों ने। अगर हमने कर लिया है और बाकी लोगों ने कर लिया तो सब कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो खैर एफसीपीएस में इटसेल्फ जैसा मैंने आपको बताया था कि आईएमएम देना होता है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एफसीपीएस में और इनफैक्ट किसी भी क्लिनिकल स्किल में, पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। पेशेंस अगर आप में नहीं होगी, क्योंकि यू विल कम अप विद सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और इवन आपने एफसीपीएस भी किया हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ ऐसे हो जाता है। अगर पेशेंस आप में नहीं होती तो यूजुअली ट्रीटमेंट ख़राब ही होता है, भले आप कितने XYZ जो है बड़े डेंटिस्ट क्यों ना हो। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप पीएचडी करते हैं, इन द एंड यू बिकम पीएचडी, ओके। आपका, आप डॉक्टर भले ना भी हो प्रीवियसली, लेकिन आपने पीएचडी की हो तो एक डॉक्टर का टैग लग जाता है, एक टाइटल मिल जाता है। लेकिन जब आप एफसीपीएस करते हैं तो एफसीपीएस के बाद आपका एक टैग कंसल्टेंट का लग जाता है, ये यू आर अ कंसल्टेंट नाउ। और लोग आपके पास ही आएंगे उसी फील्ड से रिलेटेड, जैसे अगर आप पेरियोडोंटिस्ट हैं, अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, तो कोई भी ब्रेसेस का जिसको मसला होगा वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएगा, मतलब आपके पास आएगा अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट बनते हैं। पेरियो का मसला होगा, गम्स का, पेरियोडोंशियम का, तो वो पेरियोडोंटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। दांत निकलवाना है, एक्सट्रैक्शन करनी है, इम्पैक्ट थर्ड मोलर है, ट्रॉमा हो गया है मैक्सिला मैंडिबल में, तो वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएंगे। तो यू बिकम अ कंसल्टेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव फील्ड जिसमें आपने एफसीपीएस किया होता है। तो पी जो रिसर्चर होता है वो एक रिसर्चर रहता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो ही बिकम्स अ साइंटिस्ट। जो एफसीपीएस होगा, ही बिकम्स अ क्लिनिशियन कंसल्टेंट। तो ये दो चीजें आप लोगों ने हमेशा एक जेन में रखनी है। अब अब ये चलता किस तरह है,
जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, अगर आप एक क्लिनिशियन हैं और मैं एक रिसर्चर, ठीक है, और फर्ज करें कि मैंने कोई एक मटेरियल बनाना है जो कि आपने एक पेशेंट जिसका दांत टूटा हुआ, ठीक है, और आपने कंपोजिट फिलिंग करनी है, और अब कंपोजिट जो है मार्केट में अच्छा नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो मेरा रोल क्या होगा? तो मेरा रोल यूं होगा कि मैं हूं एक रिसर्चर, मैं हूं एक साइंटिस्ट, ठीक है, मैं वो कंपोजिट बनाऊंगा, फिर मैं उसके क्लिनिकल ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मैं पेशेंट्स के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, देखूंगा कि कंपोजिट की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। ये ट्रायल, इसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। अब जब ये ट्रायल्स हो जाएंगे तो फिर मैं ये इंडस्ट्री मेरे से खरीद लेगी, इंडस्ट्री बोलेगी कि अच्छा आपने एक कंपोजिट बना दिया है, लेकिन नाम हम देंगे इस कंपोजिट को। लेट्स सपोज कि उन्होंने नाम XYZ दे दिया या 3M, जो कि मोस्ट कॉमन है, तो उन्होंने नाम दे दिया। अब वो इंडस्ट्री क्या करेगी? उसको कमर्शलाइज करेगी। कमर्शलाइज यूं करेगी कि वो डेंटिस्ट को बेचेगी, ठीक है। दे विल थ्रो इन द कंपोजिट और फिर बताएंगे कि जी इसमें स्ट्रेंथ ये थी, फलाना थी, XYZ जो भी है। जब वो कंपोजिट एक डेंटिस्ट खरीदेगा, यानी कि एक कंसल्टेंट खरीदेगा, तो वो पेशेंट के ऊपर लगाएगा, ट्रीटमेंट करेगा। अब उसके दो आउटकम्स होंगे, या तो वो सक्सेसफुल होगा या तो वो अनसक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल होगा तो पेशेंट विल बी हैप्पी विद यू, पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया, डॉक्टर साहब ग्रेट हैं। वो फिर साथ ये करेगा एज ए क्लिनिशियन। वो यूं होता है, अगर आप एक बंदे का ट्रीटमेंट अच्छा कर दो, फिर वो अपनी पूरी फैमिली लेकर आता है, वो फिर एक रेफरेंस बन जाता है आपका, ठीक है। वो डिफरेंट लोगों को बताएगा कि जी फलाने डॉक्टर साहब हैं, वो उधर बैठते हैं, उनसे जाके ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। तो ये है सक्सेस स्टोरी। अब यही चीज आपकी जब अनसक्सेसफुल हो जाए, तो अनसक्सेसफुल जब होती है, तो वो फिर होता यही है कि उसने फिर वो जो पेशेंट है वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब अभी आपने की थी, 6 महीने नहीं गुजरे और फिलिंग मेरी निकल गई, ठीक है, टूट गई, निकल गई, स्टेन्ड हो गई, जो भी है। अब वो कंसल्टेंट को करेगा। अब कंसल्टेंट क्या करेगा कि दोबारा ही इज गोइंग टू उस वेंडर को जिसने वो बेची होगी उसको बताएगा। अब वो जो वेंडर है, ठीक है, वो लेके इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री के साथ चूंकि उसकी कोलैबोरेशन होती है, तो वो डायरेक्टली भेजेगा दोबारा उस रिसर्चर को जिसने ये बनाई थी कि भाई ये मसला आया है, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट के ऊपर लगाया और वो टूट गया। अब वो साइंटिस्ट दोबारा, अब ये एक टू एंड फ्रो, ये ऐसे है कि एक यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी। तो ये जो ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे साइंटिस्ट जो भी रिसर्चर है वो जो बना रहा है चीज, उसकी एक्सपर्टीज और उसका नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट द पॉजिटिव आउटकम इन पेशेंट्स। और नेचुरली क्योंकि पेशेंट डायरेक्टली कंसल्टेंट को देखता है कि उसने ट्रीटमेंट कैसी की, तो वो तो नहीं पूछेगा कि रिसर्चर ने क्या किया, क्योंकि रिसर्चर को हमेशा कंसल्टेंट जो है वो हमेशा याद रखता है कि, क्योंकि उसको पता होता है कि एक प्रूफ एंड टेस्टेड जो है एक्सपेरिमेंट के साथ मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया गया था बाय अ रिसर्चर थ्रू अ कंपनी, ठीक है। तो नेचुरली कंपनी का नाम ऊपर जाता है, लेकिन कंपनी ने रखा होता है साइंटिस्ट को जो कि उसके लिए मटेरियल बनाता है। तो ये एक पूरा एक फ्लो है। अब इसमें डिस्टिंक्शन आपने करनी है कि आपने इस साइड पे रहना है या आपने इस साइड पे रहना है। क्योंकि मैंने दोनों साइड्स देख ली हैं, एज मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने दोनों साइड्स देखी है। मैंने ये वाली साइड भी देखी है, ये वाली साइड का मुझे अंदाजा ड्यूरिंग द माय क्लिनिकल टाइम मैंने ये नोट किया था कि इसको कौन ठीक करेगा। तो जब मैं PhD कर रहा हूँ तो उस वक्त मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये ठीक करेगा इसको, जो ये जो अनसक्सेसफुल स्टोरी है उसको सक्सेस बनाने में साइंटिस्ट का रोल ज्यादा होता है। तो खैर,
इवेंचुअली जब ऐसे होगा, एज अ साइंटिस्ट को अगर आप पॉजिटिव रिव्यूज देंगे, तो इन द एंड उसकी ऐसी ही शक्ल बनेगी जो सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। ही विल बी हैप्पी, यू नो, कि उसका फाइनली एक जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज सक्सेसफुल। अब मैं आप लोगों को अपना एक, यही जो आपको मैंने ये यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिखाया है, इसी को ही मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि अभी मेरे साथ हो रहा है, मैं आपको वो एड्रेस करना चाहता हूँ। अब ये मेरी एक लैब है, ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे कंप्यूटर सिस्टम पढ़े हैं। अब मैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो मेरा ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मैं डीएनए बना रहा हूँ, ठीक है। डीएनए, इसको हम कहते हैं डीएनए एप्टमर, ठीक है। ये डीएनए एप्टमर, ये आप देखे होंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एप्टमर, शायद थोड़ा बहुत याद हो आपको डीएनए। तो ये जो डीएनए है, ये मैं बना रहा हूँ। अब कर क्या रहा हूँ मैं बेसिकली मैं हेल्प कर रहा हूँ एक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट को की, ठीक है। किस तरह हेल्प कर रहा हूँ कि क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट के पास एंटीबॉडी आती है। अब वो एंटीबॉडी टिश्यूज में लगाता है ताकि वो डायग्नोसिस कर सके कि इसको कैंसर है या नहीं है। और मेरा जो टॉपिक है वो ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा पे है, यानी कि ओरल कैंसर पे, ठीक है। अब मैं एक ऐसी ऑल्टरनेट चीज बना रहा हूँ कि मैं एंटीबॉडी पैथोलॉजिस्ट को खरीदनी ना पड़े मार्केट से, और हम खुद एक एंटीबॉडी बना लें, ठीक है, जो कि हम हमें वो डायग्नोसिस, हमारी डायग्नोसिस कर सके, ठीक है, एक कैंसर की डायग्नोसिस कर सके, ठीक है। तो उस, वो जो ऑल्टरनेट है उसका नाम है डीएनए एप्टमर, ठीक है। अब ये सारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कि आप कंप्यूटर के ऊपर ही डिजाइन करते हैं, ये सारा कुछ आप डिजाइन करते हैं, और फिर इसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। और जिस प्रोटीन के ऊपर आप उसको टारगेट करना चाहते हैं कैंसर में, वो आप डिजाइन करते हैं, और उसके साथ आप उसकी अटैचमेंट देखते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन दी एंड कहने का मतलब ये है कि आपने जो एंटीबॉडी मार्केट में मिल रही थी, वो एंटीबॉडी आप खुद बना रहे हैं, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी मार्केट में मिली थी, ठीक है, वो ये सारे कैंसर सेल्स पड़े हैं, ठीक है, ये सारे कैंसर सेल्स हैं। अब इसमें अगर आप ये देखें कि डिफरेंशिएट हो रहा होगा, बहुत ज्यादा लाइट कलर स्टेनिंग है, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव स्टेनिंग, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस करेगा ओरल कैंसर की, तो इसके ऊपर एक पैथोलॉजिस्ट डायग्नोसिस नहीं दे सकता कि इसको ओरल कैंसर डिटेक्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, इस प्रोटीन का। तो मैंने क्या किया कि वो जो एंटीबॉडी मैं बना रहा था, डिजाइन कर रहा था, मैंने जब टिश्यू पे लगाई, और फिर ये देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द टू। जो मैंने खुद चीज बनाई लैब में बगैर पैसों के, वही चीज जब मैं टिश्यू पे लगा रहा हूँ, मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है, और जो मार्केट में मिल रही है वो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इवेंचुअली जब ये डॉक्टर को ये चीज मिलेगी, और जब वो पेशेंट को के ऊपर अप्लाई करेगा और डायग्नोसिस हो जाएगी, तो उसका मतलब है ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी हो सकेगी। जब ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगी, तो इन दी एंड किसको बेनिफिट होगा? पेशेंट को बेनिफिट होगा। तो इट ऑल गोज बैक के यहाँ पे आपने डिजाइन किया ग्राउंड लेवल पे, और इन दी एंड आपने ये चीज बनाई जो कि डॉक्टर ने यूज की, और उसने उस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट किया, ठीक है। सो इट गोज लाइक दिस कि अब मैंने ये बनाई, अब मैं इंडस्ट्री को बेचूंगा, इंडस्ट्री आगे से पैथोलॉजिस्ट को बेचेगा, और फिर पैथोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट की डायग्नोसिस करेगा। तो इन द एंड यू कुड से दैट रिसर्चर हेल्प्ड कंसल्टेंट इन डायग्नोसिंग कैंसर केस टू ट्रीट द पेशेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक क्लिनिशियन में और एक रिसर्चर में, ठीक है। तो एफसीपीएस एक क्लिनिशियन, पीएचडी एक रिसर्चर, ठीक है। और हम एज अ डिग्री की बात करें, तो डिग्री जो पीएचडी है, ठीक है, इट्स अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिग्री, दुनिया में हर जगह पीएचडी मानी जाती है। एफसीपीएस इज अ लोकली रिकग्नाइज्ड
डिग्री जो सिर्फ पाकिस्तान में और मे भी शायद सऊदी अरब में मानी जाती है, और शायद सऊदी अरब में भी अब कम हो रहा है। हाँ, अगर आप मुझे बोलते हैं पीएचडी वर्सेस इंटरनेशनल फेलोशिप और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फेलोशिप, देन देयर वुड हैव बीन एक एक सोच आती है, एक कंपैरिजन आता है, ठीक है। लेकिन ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिग्री आप एफसीपीएस के साथ कभी भी उसको कंपेयर ना करना, क्योंकि एफसीपीएस विल ऑलवेज बी लोकल, जो कि पाकिस्तान में ही ऊपर है। मलेशिया में कोई एफसीपीएस को नहीं जानता। यूजली बाहर जो एक्सेप्टेबल जो क्लिनिकल डिग्रीज हैं, अगर आप लोग सोचना चाह रहे हो क्लिनिकल की तरफ, तो आई वुड रिकमेंड मास्टर्स इन क्लिनिकल XYZ, पेरियोडोंटोलॉजी, ओरल मैक्सिलोफेशियल, ये है डिग्री। फिर एम क्लिन डेंट है, मास्टर्स इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से होती है। तो और ये डिग्रीज हैं जो कि आपकी या आप इंटरनेशनल अमेरिकन फेलोशिप अगर आप करते हैं क्लिनिकल, तो ये डिग्री हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, ठीक है। इसी तरह मलेशिया में होती है मास्टर्स इन क्लिनिकल साइंसेज में, डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, दैट इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। और तो पीएचडी इटसेल्फ, मतलब मैं किसी भी कोने पे चला जाके पीएचडी का बताऊंगा ना, तो वो बोलेंगे कि हाँ पीएचडी इसने की हुई है, इट्स एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेबल डिग्री, ठीक है, इट इज रिकग्नाइजेबल डिग्री, ठीक है। लेकिन मैं एफसीपीएस लेके जाऊंगा ना, तो भले आपने 30 साल का भी एक्सपीरियंस होगा और आपका एफसीपीएस होगा, नोबडी विल रिकग्नाइज योर एक्सपीरियंस। हर कोई ये बोलेगा ठीक है, यू हैव एक्सपीरियंस, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन आपने ये हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। तो इसलिए आपने ये चीज, एफसीपीएस में ना आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी, जैसे आपको ड्यूटी आपकी लग जाएगी हॉस्पिटल में, ठीक है, जिसमें आप क्वालिटी कंट्रोल जो है आपका, पेशेंट्स, आप डिफरेंट पेशेंट्स देखोगे तो एक आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं रख पाते एज ए क्लिनिशियन हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। लेकिन जब आप क्लिनिक में जाते हो, चूंकि वो अपॉइंटमेंट बेस्ड होती है, तो क्वालिटी आपकी मेंटेन रहती है और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन भी होती है। लेकिन देन अगेन लोकली रिकग्नाइज्ड है, आप लोकल ही ग्रो करेंगे, आप ग्लोबली ग्रो नहीं कर पाएंगे एफसीपीएस करके। तो ये चीज आप लोगों ने जेहन में रखनी है कि आपको ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए या आपको लोकल रिकग्निशन चाहिए। तो उसमें आपने एक पाथ अपना चूज करना है, वेरी वाइजली एंड वेरी इंटेलिजेंटली, ठीक है। सक्सेस आपको दोनों में से किसी जगह पे भी मिल सकती है। डोंट थिंक अबाउट कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलती है। अगर आपने पाकिस्तान में ही थ्रू आउट रहना है, ठीक है, और आप क्लिनिक करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप चलो एफसीपीएस कर लो, ठीक है। लेकिन आपने क्लिनिक ही करना है और आप चाहते हो कि ग्लोबली रिकग्नाइज कोई डिग्री हो, देन सी फॉर अदर फेलोशिप्स प्रोग्राम्स आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एट द सेम साइड, फिर अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आप कोई चीज क्रिएट करना चाहते हो दैट कुड हेल्प द सोसाइटी इन जनरल, तो फिर उसके लिए डेफिनेटली ये है कि आप पीएचडी तक एक तो नंबर वन आप ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होगे, आपके वर्क को डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट विल बी रिकग्नाइज्ड, और फिर आपको एक चांस मिल जाता है कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री में आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ, जो बायोजीन्स नाम है उस कंपनी का, उसके साथ मेरी अटैचमेंट है, ठीक है। उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, इट विल बेनिफिट मी आफ्टर पीएचडी के मैं उनके साथ भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको ग्लोबली रिकग्नाइज कोई डिग्री होती है, तो आपके पास स्कोप और चांसेस आपके पास बढ़ जाते हैं। तो
थैंक यू। और इन द एंड डू रिमेम्बर कि आप कभी भी गिव अप नहीं करना, और हमेशा जो है कीप ऑन स्ट्रगलिंग। इन द एंड आपको मिल जाएगी सक्सेस, लेकिन जस्ट चूज, और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं सराउंडिंग में ना, जस्ट कीप गुड पीपल अराउंड यू, ताकि वो आपको अच्छे अच्छे मशवरे, अच्छी अच्छी सजेशंस दें, अच्छी अच्छी एडवाइस दें, और आप उस हिसाब से ग्रो करो। ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। Thank you so much, sir, for a very comprehensive and engaging lecture. Your insights will surely benefit our audience. So, अब हम question answers की तरफ चलते हैं, because we have a lot of questions and time is very short. तो सबसे जो most frequently asked questions थे, वो हम आपसे पूछ लेंगे. पहला तो सर क्वेश्चन ये है कि बहुत से बच्चों का ये आया पीएचडी से रिलेटेड itself कि दो तीन इसमें वेरिएशंस हैं. हम मलेशिया में पीएचडी कैसे करें? सुपरवाइजर्स कैसे हम उनको ढूंढें, कैसे आइडेंटिफाई करें अपने लिए एक सुपरवाइजर? एंड अगर एक स्टूडेंट या यंग ग्रेजुएट है जिसका रिसर्च में इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं पब्लिश हुई हुई, तो वो सुपरवाइजर को कैसे ढूंढ सकते हैं? एंड इन द एंड कि अगर हम पीएचडी कर लेते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर? तो ये पीएचडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाते सही, हैं. सही है। सबसे पहली बात ये है कि जब आप पीएचडी के लिए, क्योंकि जब आप डायरेक्टली पीएचडी में नहीं एंटर हो सकते अनलेस एंड अनटिल कि आपने मास्टर्स किया हो, एमफिल किया हो, या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि मास्टर्स लिंक टू पीएचडी, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में होता ये है कि हम मास्टर्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग अभी ग्रेजुएट हो तो मास्टर्स से स्टार्ट करेंगे। तो मास्टर्स के लिए भी यही है कि आपने सबसे पहले सुपरवाइजर्स को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिल्टर आउट कर ली यूनिवर्सिटीज, आप चाहते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एंटर करूं, ठीक है। तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहीं पे यूनिवर्सिटी की टॉप पैनल के ऊपर ही लिखा होगा लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइजर्स, डिपार्टमेंट के साथ ही लिखा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेंटल डेंटल मटेरियल में करना चाहते हो, ठीक है, या फॉर एग्जांपल लोग यहाँ पे, अब हम लोग बड़े लिमिटेड है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक डिस्टिंक्शन की हुई है, क्योंकि सीपीएसपी का एक वो है, क्या बोलें उसको, कि एक उनका एक इम्पैक्ट है हमारे पीएमडीसी पे, कि जी क्लिनिकल डिग्री का मतलब ये है कि क्लिनिकल में ही आपने करते रहना है, लेकिन जहाँ पे मलेशिया में आप क्लिनिकल साइंसेस में भी लोग पीएचडी करते हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब होता यूं है कि उन नेवरदलेस होता यूं है कि आपने मास्टर्स के लिए सबसे पहले करना ये होगा कि आपने पोटेंशियल सुपरवाइजर ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाओगे, उसका नाम है, सुपरवाइजर का नाम है लेट्स सपोज दानियाल, ठीक है। अब उसके नीचे दानियाल के नीचे लिखा होगा कि इंटरेस्ट इन, लाइक फॉर एग्जांपल डेंटल मटेरियल आप देख रहे हो, तो लिखा होगा इंटरेस्ट इन रेजिन मॉडिफाइड मटेरियल्स, ठीक है। अब आपके पास आप इस तरह करके देखते हो कि इसी तरह डिफरेंट सुपरवाइजर्स होंगे, उनके नीचे इंटरेस्ट लिखे होंगे। अगर वो इंटरेस्ट आपके उसके मुताबिक है तो आप उसके मुताबिक उसको प्रपोजल डालते हो, कि जैसे लेट सपोज आप प्रपोजल डाल दोगे कि सर आई वांट टू परस्यू फॉर माय मास्टर्स इन XYZ सब्जेक्ट, and my topic of interest aligns with your interest field, ठीक है। सो अब मैं ये चीज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ इन दिस, ठीक है। बिल्कुल एक ब्रीफ स्मॉल लाइन, आपको उसको भी पता होता है सुपरवाइजर को भी कि आप अभी यंग ग्रेजुएट हो, ठीक है। वो मास्टर्स लेवल पे इतना ज्यादा गौर नहीं करते, तो यूजुअली उनके पास या तो प्रोजेक्ट होगा, वो बोलेगा कि हाँ जी मुझे ऑलरेडी ग्रांट मिली हुई है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मुझे मास्टर स्टूडेंट की जरूरत है, तो व्हाई नॉट यू जॉइन अस। लेकिन उस चीज में आपको बहुत ज्यादा ब्राउजिंग करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली मिल जाता है। कोई भी मुझे अभी तक ऐसा नजर नहीं आया जो पोटेंशियल सुपरवाइजर की तलाश में हो और उसको ना मिले, हर किसी को मिल जाता है, ठीक है। और तरीकेकार ऐसे ही है, सही है।
और फिर उसके बाद सवाल ये किया गया था कि अगर आपके पास रिसर्च बेस्ड कोई एक्सपीरियंस ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स पे आपने अप्लाई किया, आपके पास रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आपका जो बीडीएस में जो जीपीए बनेगा, जो स्कोर बनेगा, दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग इनटू मास्टर्स प्रोग्राम। दैट इज व्हाट दे रिक्वायर एक्चुअली, ठीक है, एट द मास्टर्स लेवल। लेकिन जब आप पीएचडी लेवल पे जाते हो ना, तो फिर वो आपसे पूछते हैं, अच्छा कितनी पब्लिकेशंस हैं, कितने आर्टिकल्स छापे हुए हैं आपने, ठीक है, इस टाइप की बातें पूछते हैं, और मास्टर्स में आपका क्या जीपीए था। तो एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ, लेकिन आप चूंकि मास्टर से स्टार्ट करेंगे, उसका मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मार्केट वैल्यू जो है वो, अब मैं आपको ये मार्केट वैल्यू बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो अबाउट माय फ्यूचर, बट आई नो दिस थिंग कि कोई भी आप डिग्री करते हो वो ज़ाया नहीं जाती, ठीक है। और जो मार्केट वैल्यू है वो यूं है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैं एक इंडस्ट्री के साथ अटैच हूँ, मैं उनके लिए एक चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अब नेचुरली कल को जब मैं पास आउट होऊंगा, वो मुझे ऑफर करेंगे कि ताकि मैं लीक आउट ना कर दूं, ठीक है, मैं लीक आउट ना कर दूं सीक्रेट्स या कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि मे बी किसी और कंपनी को फायदा हो जाए मेरे से, ठीक है। तो इसलिए वो प्रायोरिटी देते हैं, तो दैट बिकम्स आपकी एक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू अर्न मोर इन रिसर्च, कि आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज उठा लेती हैं। और एकेडेमिक्स तो है ही है, तो आप एकेडेमिक्स में भी आप अपने आप को अपॉइंट कर लेते हैं, एट द सेम टाइम यू आर एफिलिएटेड विद द इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह करके आप अटैच अपने आप को कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको बेनिफिट देती है एज अ पीएचडी, not masters, PhD. If you're doing masters, go for PhD. Okay, don't stop at masters के masters हो गया, अब मैं क्लिनिक करता हूँ, क्लिनिक खोल लेता हूँ दबा दबा के, मैं नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी। Go to the extreme, कोई भी डिग्री पकड़ो, go to the extreme। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड था कि एक तो ये है, जो बहुत से बच्चे जो हैं जब वो रिसर्च कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या वो क्लिनिक भी कर सकते हैं, एंड अगर आप किसी जगह पे पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो हाउ डू यू सपोर्ट योरसेल्फ फाइनेंशियली? क्या आप क्लिनिकली कोई जॉब उसी इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं? इज देयर स्कोप फॉर दैट? अच्छा, ठीक है। यूजुअली होता ये है कि एक तो चलो मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने मास्टर्स एमफिल जब मैंने किया था, तो मेरा क्लिनिक था और मैं क्लिनिक कर रहा था साथ साथ, ठीक है। तो मैं एक वो एग्जाम्पल हूँ कि एमफिल के दौरान मैं क्लिनिक भी कर रहा था। तो हाँ, जब मैं पीएचडी के लिए आया हूँ तो नेचुरली माय क्लिनिक इज एट स्टॉप। मेरा जो दोस्त है वो ही इज रनिंग, मैंने बंद नहीं किया क्लिनिक, स्टिल रनिंग, ठीक है। जहाँ तक बात रही, जब आप इधर आ जाते हो तो इधर क्या मिलता है, तो यूजुअली ये आपको हर किसी को तो नहीं, खैर, लेकिन कुछ कुछ लोगों को अगर तो वो प्रोजेक्ट पहले से ही बना बनाया है एक सुपरवाइजर के पास, तो उसमें से वो आपको स्टाइपेंड देता है, ठीक है। स्टाइपेंड इज यूजुअली 1500 रिंगिट्स टू 2000 रिंगिट्स, समटाइम्स 2500 रिंगिट्स। तो अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो इट मीन्स के आपको महीने का 80,000 से लेके 1,20,000 तक, 1,20,000 तक आपको महीने का मिल जाता है। तो इस तरह आप अपने आप को मतलब सर्वाइवल हो जाता है आपका, ठीक है। और अगर तो आप इंडस्ट्री के साथ अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं RA। अगर ऐसा किसी को स्टाइपेंड लग जाए, उसको कहते हैं रिसर्च असिस्टेंट, RA। अब मेरा जो है वो, मेरे केस में चूंकि मैंने प्रपोजल खुद बनाया था और मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने प्रोजेक्ट अपना खुद डेवलप किया, तो उस केस में मुझे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टाइपेंड नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आइडियली यही है कि एक प्रोजेक्ट हो, आप प्रोजेक्ट में आप वो टेक ओवर करें और आपको उसमें से स्टाइपेंड मिल जाता है।
अगर तो आप लकी हैं और ड्यूरिंग द कोर्स अगर आपको कोई इंडस्ट्री उठा लेती है तो फिर इंडस्ट्री आपको पे करती है, ठीक है, आपको स्टाइपेंड देती है। जैसे मेरे केस में हुआ कि उन्होंने उठा लिया और मुझे वो अब उस तरह करके वो मैं उनका एम्प्लॉय हूँ हु इज डूइंग पीएचडी इन यूएसए, ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसे हो, ठीक है, लेकिन ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो जब आप एक ज़हन में ये चीज बना लेते हैं कि मैंने ये करनी है ना, तो ये फैक्टर्स ना देखो कि मैं भूखा मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, फुटपाथ पे मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। अगर आ भी जाओगे ना तो इन दी एंड जो चीज मिलेगी ना, ये सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी। तो डोंट थिंक ऑन दोज लाइंस, ठीक है। और यही वजह होती है, यही पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ना एक स्टूडेंट या एक ग्रेजुएट वो आगे एक्सेल नहीं कर पाता, इस डर से कि क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, फुटपाथ पे आ जाऊंगा। मैं एक किंग या क्वीन लाइफ गुजारा या गुजार रही थी इधर इधर पाकिस्तान में, उधर जाके मुझे गरीबों की तरह रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इट्स ऑल फॉर योर ओन गुड, लेकिन एटलीस्ट मेक अप योर माइंड और उस हिसाब से गो फॉरवर्ड। Okay, sir. Thank you so much, sir, for this wonderful lecture. Our second speaker is here, Dr. Asfan, and thank you so much. हमारे काफी ज़्यादा questions answer हो गए हैं. Thank you so much for your lecture, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। Okay, sir. Allah Hafiz.